A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. I am Sir Yasin, teacher of Pakistan study from Peshawar Model School System. Dear student, this is my fifth lecture in chapter 1. In fifth lecture, we will discuss about Pakistan ideology according to the saying of Allama Iqbal and Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. इस लेक्चर में हम नजरिए पाकिस्तान को अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद-ए-आज़म की इशादात की रोशनी में पढ़ेंगे. Introduction. Poet of the East, Allama Muhammad Iqbal and father of the nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah are the prominent among those persons who play important role in the establishment of Pakistan. क़याम पाकिस्तान में जिन हस्तियों ने अहम किरदार अदा किया था उनमें शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल और बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम सर फहरिस्त है. इन दो अजीम रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौक़े पर अपनी इर्शादात में नजरिए पाकिस्तान को बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया. Allama Muhammad Iqbal gave the concept of separate Muslim state to the Muslim of South Asia, while Qaid-e-Azam gave it a practical shape and guided the Muslim in their political struggle. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जनूबी एशिया के मुसलमानों के सामने एक अलग मुस्लिम रियासत का तस्वर पेश किया, जबकि कायद-ए-आज़म ने इस तस्वर को एक अमली शक्ल दे दी. और आखिरकार At last, Pakistan came into being on 14 अगस्त 1947 और आखिरकार मुसलमानों को 14 अगस्त 1947 को एक अलग वतन मिल गया. पाकिस्तान मर्ज वजूद में आ गया और ये मुल्क हमें अमली शक्ल में कायद-ए-आज़म ने दिया, जबकि तस्वुराती शक्ल में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यह तस्वर पेश किया था. लेकिन बदकिस्मती से अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसको अपनी आंखों से नहीं देखा. अल्लामा मोहम्मद इकबाल. Sir Muhammad Iqbal, also known as Allama Iqbal, was a philosopher, poet and politician in the British India. He was born on 9 November 1877 and died on 21st April 1938. He is considered one of the most important figures in Urdu literature, with literary work in both Urdu and Persian language. He was also called as a Muslim philosophical thinker of modern times. Iqbal is also known as Shair Mashriq, meaning poet of the East. He is also called Mufakkir Pakistan, the inceptor of Pakistan, and Hakim al-Ummat, the sages of the Ummah. तो बच्चों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल न सिर्फ फिलासफर, शायर और पॉलिटिशियन था, बल्कि वो शायर मशरिक भी था, मुफक्किर पाकिस्तान भी था, क्योंकि पाकिस्तान का तस्वुर सबसे पहले इसने पेश किया था. अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 को पैदा हुआ था और 21 अप्रैल 1938 को वफात पा गया. और उसने अपनी आंखों से अपने मुल्क को नहीं देखा, क्योंकि हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हो गया और वो पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे. तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल उर्दू और शायरी का बहुत बड़ा फिलासफर भी था, शायर भी था और उसने कई किताबें लिखी थी. Ideology of Pakistan and Allama Iqbal. In the beginning, like Sir Syed Ahmad Khan, Allama Muhammad Iqbal also is a great supporter of Hindu-Muslim unity and united Indian nationalism, but in the light of later coming event and condition, he gave the concept of separate homeland for the Muslim of Indo-Pak subcontinent. सर सैयद अहमद खान की तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी इब्तदाई दौर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और मुत्तहिदा हिंदुस्तान की कौमियत के ज़बरदस्त हामी थे, मगर बाद में पेश आने वाले हालात और वाक़ियात के तनाजुर में उन्होंने बरसगीर और पाक हिंद के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का तस्वर पेश किया था. और इस टू नेशन थ्योरी को बयान करते हुए in 1930, while delivering his presidential address at the annual session of Muslim League at Allahabad, he said, India is a continent of human group belonging to different races, speaking different languages and professing different religion. The principle of European democracy cannot be implemented in India. The Muslim demanded for a Muslim India within India is therefore the perfect justified. आपने फरमाया 1930 में इलाहाबाद के सालाना इजलास में सदारती खुतबा देते हुए आपने फरमाया कि हिंदुस्तान एक इंसानी गिरोह का खित्ता है जो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती है और मुख्तलिफ मज़हब के पैरोकार है. यूरोपीय तर्ज़ जमहूरियत जो है ना कि वसूल हिंदुस्तान में राज नहीं किया जा सकते. इसलिए मुसलमानों का यह मुतालबा है कि हिंदुस्तान को एक मुसलमान रियासत कायम किया जाए और ये मुसलमानों का मुकम्मल परफेक्ट उसका एक जायज़ हक है. इसी तरह इलाहाबाद एड्रेस में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के एक अलहदा मुल्क का एक तस्वर भी पेश किया था. आपने फरमाया
I would like to see the Punjab NWFP, present KPK, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. It appeared to be the final destiny of the Muslim of Northwest area. These are the Northwest area of India. आपने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग रियासत बनाई जाए और ये शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों की एक तकदीर बन चुका है, डेस्टिनी बन चुका है. These are those areas which Allama Muhammad Iqbal demanded a separate state for Muslim because Muslims were in majority in these areas. The second one is Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. He was born on December 25, 1876 in a house known as Wazir Mansion, Lahore, located in Karachi. His father's name was Jinnah Punja and mother was Mitibai. He belonged to a merchant family. He was a great politician and a well-known lawyer of his time. He struggled a lot for the freedom of Muslims of subcontinent, and on behalf of his extraordinary effort, he was rewarded with the title of Quaid-e-Azam, the father of the nation, by Maulana Mazharuddin. He died on September 11, 1948, just 13 months after the creation of his beloved homeland. Quaid-e-Azam भी 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे कराची में. उसके वालिद का नाम जिन्ना पुंजा था और वालिदा का नाम मितिबाई था और उसके वालिद जो है ना एक ताजिर था और ये बहुत बड़ा एक वकील और सियासतदान भी था और इसको बाद में बाबे कौम का लक़ब भी मिल गया. ये लक़ब मौलाना मज़हरुद्दीन ने उसको दिया था इसी बुनियाद पर कि आपने मुसलमानों को सियासी जदोजहद में बहुत अहम किरदार अदा किया था, मुसलमानों को एक अलग मुल्क आज़ाद करवाया और आखिरकार वो इस मुल्क का पहला गवर्नर जनरल भी था और 11 सितंबर 1948 को 13 माह बाद मुल्क के आज़ाद होने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए. तो आपने नजरिया आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान किस तरह पेश किया था? सबसे पहले कायद-ए-आज़म भी अपनी सियासत का आगाज कांग्रेस से किया था 1906 में, क्योंकि कांग्रेस का जो नजरिया था वो यूनाइटेड इंडियन नेशनलिज्म था और सर सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल की तरह वो भी शुरू में मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी था. लेकिन बाद में जो वाक़ियात हो गए थे, जो ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि आपने भी वो दो कौमी नजरिया पेश किया गया था. Quaid-e-Azam explained two-nation theory and ideology of Pakistan in a very comprehensive words at different times. अल्लामा Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कई मौके पर दो कौमी नजरिया और नजरिया पाकिस्तान की वजाहत निहायत जामी अल्फाज में किया था. और आप भी पहले इंडियन नेशनलिज्म के हामी था, लेकिन बाद में आपने फरमाया he said you may define the word nation in any way according to that Muslim are a separate nation by any definite definition of a nation. आपने फरमाया आप लफ्ज कौम की जो भी तारीफ करें इसकी रूह से मुसलमान एक अलग कौम है. अब वो इस बात का हक रखता है कि हम अपनी ममलिकत कायम कर सके. हमारा ये हक है कि हमारा भी एक अलग मुल्क होना चाहिए. लाहौर रिजोल्यूशन के मौके पर आपने फरमाया Hinduism and Islam are not only two religions but two different social systems. That is why this idea should be understood as a dream that Muslim and Hindu could ever be adopted the status of United Nation. Hindus and Muslims belong to two different civilizations which are based on such ideas and thinking. Those are against each other. आपने फरमाया कि हिंदू मत और इस्लाम सिर्फ दो मज़ाहिब नहीं है बल्कि दो जुदागाना समाजी निज़ाम है. इसलिए ये तस्वर महज एक ख्वाब ही समझा जाता है कि मुसलमान और हिंदू का भी एक मुश्तरका कौम की हैसियत से इख्तियार कर सके. हिंदू और मुसलमानों का ताल्लुक दो अलग तहजीबों से जिसकी बुनियाद ऐसे ख्यालात और नजरियात पर रखी गई है जो एक दूसरे की जिद है. लेटर टू गांधी. गांधी को खत लिखते हुए आपने फरमाया वी आर अ नेशन with our own distinctive culture and civilization, languages and literature, art and architecture, legal laws and moral codes, custom and calendars, history and tradition, aptitude and ambition. We have our own outlook of life. By all canon of international law, Muslims are a different nation. गांधी को खत लिखते हुए आपने एक अलग कौमी शनाख्त के हवाले से लिखा, फरमाया कि हम मुसलमान अपनी तहजीब तमद्दुन के लिहाज से एक कौम है. ज़बान, अदब, फ़नून लतीफ़ा,
फ़न तामीर, कानून व अखलाक, रस्म व रिवाज, तारीख, रिवायात और रुझानात और मकासद हर हवाले से हमारा अपना एक इनफरादी नुक्ता नज़र है और फ़लसफ़े हयात है। और बैनुल-अक़वामी कानून की हर तारीफ की रूह से मुसलमान एक जुदागाना कौम है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद आपने फरमाया नजरिए पाकिस्तान को इस तरह पेश किया, और मिशन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट वेयर वी कैन लिव लाइक फ्री पीपल इन आवर ओन कल्चर सेटअप नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ अ सोशल जस्टिस एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी। आपने फरमाया कि हमारा नस्बुल ऐन ये है कि हम एक ऐसी रियासत को वजूद में लाएं जहां हम आज़ादी इंसानों की तरह रह सके, जहां हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सके, जो हमारी तहजीब की रोशनी में तरक्की कर सके, और जहां इस्लाम के माशरती इंसाफ के तस्वुर को उभरने का मौका मिले। Thank you, dear student. I hope you should understand my lecture. Stay home and take care of your own health. Thank you.